علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اپنے شوہر کی من چاہی بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ میرا شوہر میری ذات میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اس بات کا تو مجھے اندازہ تھا، مگر وہ میرے ساتھ اس طرح سے کرے گا اس بات کا مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا۔ بے لوث محبت سے اپنے شوہر کا دل جیت لوں گی، اس کے دل میں بھی میری محبت جاگ جائے گی۔ مگر آج میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، میری ساری محنت رائے گاں گئی جب میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کو اس کی کازن زونی کے ساتھ، مجھے اپنی سماعتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دم سے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو، میری پوری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ میں جانتی تھی میری کوئی اوقات نہیں تھی، مگر میں اتنی بے مول تھی، اس بات کا مجھے آج اندازہ ہوا تھا۔ میرا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو لمحوں میں زمین بوس ہو جاتی۔ مجھے اپنی کم مائگی کا بری طرح سے احساس ہونے لگا، میرے پورے وجود پر کپکپاہٹ طاری تھی، مجھے اپنا وجود خالی اور کھوکھلا محسوس ہوا۔ اتنی بڑی دنیا میں میں ایک دم سے تنہا ہو گئی۔ آخری سہارا بچا تھا میرے پاس جینے کا، آج وہ بھی مجھ سے چھن گیا تھا۔ میرے سر پر کوئی سائبان نہیں بچا تھا۔ دادی جھوٹ بولتی تھی، غلط کہتی تھی کہ میرا نصیب شہزادیوں والا ہوگا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو دیکھتی میں کتنی بے وقت تھی۔ میری زندگی مجھ پر اس وقت تنگ ہو گئی جب میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ میرے باپ کے مرنے کی دیر تھی۔ میری ماں مجھے دادی کے حوالے کر کے اپنے میکے چلی گئی اور کچھ ہی عرصہ میں دوسری شادی رچا لی۔ اسے میری ضرورت نہیں تھی، وہ جوان تھی، اسے دوسرا مرد مل سکتا تھا۔ تبھی اپنی 4 ماہ کی معصوم بچی کو خود سے دور کرتے ہوئے میری ماں کو درد محسوس نہیں ہوا تھا۔ اور جب میں اپنی سگی ماں کے لیے ہی کوئی اوقات نہیں رکھتی تھی تو کوئی اور کیوں میرے فکر کرتا اور میرا احساس کرتا۔ میرے تایا اور پھوپھیوں نے یہی کیا اور میری ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میری دادی جو اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم میں بستر سے جا لگی تھی اور بس موت کی چاہت کرنے لگی، اپنے لاڈلے بیٹے کی اکلوتی نشانی کو یوں لاوارثوں کی طرح رولتے دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اور میری خاطر میری دادی نے ایک بار پھر سے زندگی کو قبول کیا۔ انہوں نے بستر چھوڑ دیا اور مجھے سینے سے لگائے صحت یاب ہو گئی۔ مجھے گود میں لیتے ہی دادی کو جیسے سکون ملا تھا۔ تائی اور پھوپھیاں کبھی نہیں چاہتی تھیں کہ میرا وجود اس گھر میں پرورش پائے، مگر میری دادی نے ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ دادی سمجھدار تھی، رویوں کو اچھی طرح جانچنا جانتی تھی۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا مجھے پھینکنے سے میری ماں کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ میں اس دنیا میں اپنے سگے رشتوں کے ہوتے ہوئے لاوارث ضرور ہو جاؤں گی۔ اور جب دادی نے 2 ٹوک فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے پالیں گی اور اس معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنیں گی، تو سب کو خاموش ہونا پڑا۔ یوں بھی دادا نے مرنے سے پہلے اپنا گھر اور دکان دادی کے نام کر رکھی تھی۔ دادی ان کی محتاج نہیں تھی، بلکہ وہ سب دادی کے محتاج تھے۔ میرا نام دادی نے روشنی رکھا۔ پیار تو مجھ سے کوئی نہیں کرتا تھا، البتہ پیار کا دکھاوا ضرور کرتے۔ میرے معاملے میں دادی بہت سخت مزاج ہو گئی۔ اگر کوئی بھی میرا دل دکھانے کی کوشش کرتا یا میرے ساتھ سخت رویہ رکھتا
तो दादी इस बात को अपनी अना का मसला बना लेती और दिनों तक उन लोगों से बात नहीं करती थी। जो भी था, घर और पूरे ख़ानदान में मेरी दादी को बहुत ही इज्जत और एहतराम से नवाजा जाता था। हर कोई उनकी नाराज़गी से डरता था, इसलिए मुझे भी परेशान करना छोड़ दिया। और जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त तक सबने अपने असल रवैयों पर एक खौल चढ़ाकर मुझसे आर्जी मोहब्बत के ड्रामे रचाने शुरू कर दिए। इसलिए मैं कभी भी जान नहीं पाई कि इस घर में दादी के अलावा बाकी सभी मुझे बोझ समझते थे। मैं तो बस अपनी दादी की लाडली थी। पूरे घर में तितली की तरह उड़ती फिरती थी। दादी के बेजा लाड प्यार का नतीजा था मैं शुरू से ही बहुत शोख और शरारती किस्म की लड़की थी। पढ़ाई के बाद मेरा सारा वक्त गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हुए गुजरता था। मेरी शरारतें अपने उरूज पर थीं। मैंने पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा था। अक्सर ही मोहल्ले वाले मेरी शिकायतें लेकर दादी के पास आते और मेरी शिकायत सुनकर दादी कितनी देर तक हंसती रहती। कई बार ताया और ताई ने दबे लफ्जों में कहना चाहा कि मैं जवान हो रही हूँ, मेरी हरकतें ठीक नहीं हैं, मगर दादी किसी की बात पर कान नहीं धरती थी और कहती, मुझे तो अपनी बच्ची ऐसे ही हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है, बिल्कुल मेरे जवाद की तरह जिंदा दिल है। ये बात करते हुए दादी की आंखें पानी से भर जाती और मोहल्ले वाले उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाते। सभी दादी के इस दर्द से वाकिफ थे। दादी को अपना छोटा बेटा बहुत प्यारा था। वो भी अपनी माँ के बहुत करीब था। शायद मेरे बाप को अंदाजा था कि वो बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाएगा, इसलिए ज्यादातर वक्त अपनी माँ के पास गुजारता था। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो मेरी दादी के लिए भी इस दुनिया की रौनकें खत्म हो गई। वो तो शायद तन्हाइयों की आदी हो जाती, जो अगर उनके जिंदगी में मेरा वजूद ना होता। ताई ने बहुत गैर महसूस तरीके से मुझे अपने बच्चों से दूर रखा था। उनके बच्चे मेरे साथ ना तो खेलते थे और ना ही मेरे साथ कोई बात करते, मगर मैंने कभी भी इस बात को महसूस नहीं किया था। दादी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। उन्होंने मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं माँ बाप के बगैर इस घर में रहती हूँ। कभी कभी ताई और ताया को अपने बच्चों के साथ लाड प्यार करता देखती तो मेरा भी दिल करता कि मेरे माँ बाप होते, और मेरी इस महरूमी को महसूस करते हुए दादी मुझे अपने आगोश में समा लेती। उनका प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता था। ताई और फूफियां लाख मुझसे खार खाती, मैं परवाह नहीं करती थी। जवान हो जाने के बाद भी मुझ में बचपना था, मगर मेरी शोखियां उस वक्त खत्म हो गई जब अपनी छोटी फूफो के घर एक फंक्शन अटेंड करने हम सब गए। वहां बातों बातों में फूफो की सास ने मुझे बताया मेरी माँ कितनी संगदिल और जालिम औरत थी। शौहर के मरते ही फौरन ही अपने मैके वालों के मशवरे पर मुझे अपनी दादी की गोद में डाला और खुद अपने माँ बाप के घर चली गई और जल्द ही दूसरी शादी भी कर ली। अपनी माँ की असलियत जानकर मैं दंग रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी एक माँ अपनी औलाद के साथ इतनी संगदिल हो सकती है। मुझे तो बस यही मालूम था कि मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। आज माँ के बारे में सुना तो दिल में दर्द की लहरें उठने लगी। और फिर ताई ने भी तो हंसते हंसते सुनाया, ये लड़की बड़ी बदबख्त है, पैदा होते ही बाप को खा गई और ऐसी नामुराद है कि माँ के दिल में जगह नहीं बना सकी। हमें तो फिक्र खाए जाती है ये कोई गुली ना खिला ले। इन बातों ने मुझे शदीद चोट पहुंचाई थी। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ मेरी ताई मुझसे शदीद नफरत करती है। मेरी दादी फूफो कमरे में नमाज अदा कर रही थी, वो ये बातें नहीं सुन सकी। और जब मैं भीगी आंखें लिए दादी के पास जाने लगी तो बड़ी फूफो ने मुझे बाजू से दबोच कर सख्ती से कहा था, देखो लड़की, खबरदार ये बातें अंदर जाके अम्मा के सामने करने की कोशिश की तो तुम्हें तो
فرق نہیں پڑتا، مگر تمہاری باتیں سن کر میری ماں کی طبیعت ضرور بگڑ جائے گی، اور اگر میری ماں کو کچھ ہوا نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، صرف تمہیں اپنی ماں کی وجہ سے ہی برداشت کر رہے ہیں۔ پھوپھو کے سرد اور شفاف لہجے پر میں کٹ کر رہ گئی۔ میں بری طرح سہم گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اگر دادی کو کچھ ہو گیا تو یہ لوگ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اسی روز ہو گیا تھا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں کئی دن کچھ بول نہیں سکی تھی۔ دادی میری اس خاموشی پر بہت پریشان تھی، مگر میں نے پڑھائی کا بہانہ بنایا تو دادی نے پرسکون ہو کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ پھر بولی، دیکھو روشنی، محنت تو تمہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہارے نمبر کم آ بھی گئے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تم دل لگا کر پڑھو، اگلی بار اچھے نمبر آ جائیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو جائے تمہیں تو شہزادہ بیانے آئے گا اور اپنی ملکہ بنا کر لے جائے گا۔ دادی کی بات پر میں پھیکا سا مسکرا دیتی۔ وہ ہر وقت تو مجھے یہی سناتی تھی کہ میں شہزادی، میرے لیے شہزادہ ہی آئے گا۔ میں اپنی دادی کے لیے بہت حساس ہو گئی تھی۔ انہیں ذرا سا بھی کوئی نزلہ بخار ہو جاتا تو میری جان پر بناتے۔ میں رو رو کر ہلکان ہو جاتی اور میری وجہ سے دادی بھی پریشان ہوتی۔ وہ میرے بدلتے رویے سے پریشان تھی، اور پھر جلد ہی یہ عقدہ کھل گیا جب تائی کھلم کھلا کہنے لگے، آپ بہت بھولی ہیں اماں جان، لڑکی جوان ہو رہی ہے، اس کو لگام ڈالے، کوئی گل کھلا لیا تو ہم لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ اللہ جانے سارا دن کون سی پلاننگ میں مصروف رہتی ہے، اس کی سوچیں تو رکنے میں ہی نہیں آتی۔ میں کہہ رہی ہوں کوئی اونچ نیچ ہوئی تو برداشت نہیں کروں گی، میں بھی بیٹیوں والی ہوں۔ تائی کی باتوں نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا، اور تب میں چیخ اٹھی اور بولی، مجھ پر الزام لگانے سے پہلے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ مجھ پر کیچڑ اس لیے اچھال رہی ہیں کہ میرے سر پر نہ ماں ہے نہ باپ۔ لاوارث جان کر آپ نے میرے کردار پر تہمت لگانا شروع کر دی ہے۔ میں شرارتی ہوں مگر بدذات نہیں۔ آج کے بعد میرے کردار کی دھجیاں اڑانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ مجھے میری دادی نے پالا ہے، اس عورت نے جس کے آگے پیچھے آپ سب گھومتے ہیں، صرف اس لیے کہ گھر ان کے نام ہے۔ اپنی بات کر کے میں تو کمرے میں آ گئی، مگر میری بات نے تائی کے تن بدن کو آگ لگا دی۔ ان کو بالکل امید نہیں تھی کہ میں اتنی اچانک دادی کے سامنے ساری باتیں کر دوں گی۔ وہ بلبلا اٹھی، اور یہ حقیقت جان کر دادی کی اذیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور اب گھر میں تائی کا زور چلتا تھا۔ اب دادی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب اکثر تائی مجھے باتیں سناتی اور میرے ہر کام میں 100 عیب گنواتی۔ پھوپھیاں بھی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں ان رویوں کی عادی نہیں تھی، چاہے دادی کے احترام میں یا کوئی اور وجہ۔ کسی نے بھی میرے ساتھ اس طرح بات نہیں کی تھی، مگر اب تو اچانک سے سب کے رویے دیکھ کر میرا دل درد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ دادی کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ انہیں اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب سب میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ اب تو میرے کردار کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی۔ دادی اکثر بیمار رہنے لگی، وہ میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ پہلے کی طرح شرارتیں کر کے اپنی دادی کو خوش کر سکوں، مگر دادی کی رنجیدگی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر انہی دنوں دادی کی ایک دوست ان سے ملنے چلی آئی۔ برسوں بعد دونوں سہیلیوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی۔ کتنی دیر دونوں گلے لگ کر روتی رہی۔ دادی کی دوست دوسرے شہر بیائی گئی تھی، اس لیے شادی کے بعد دونوں سہیلیوں کا رابطہ نہیں ہو سکا، مگر اب سگے بھتیجے کی وفات پر ان کا اس شہر آنا ہوا تو انہیں دادی کا خیال آ گیا۔ دادی نے منت کر کے اپنی سہیلی کو اپنے پاس روک لیا۔ مجھے بھی وہ بہت اچھی لگی تھی، میری دادی کی طرح نرم مزاج، پرشفیق سی
मुझे बहुत प्यार से उन्होंने गले लगाया था। हमारे घर रहते हुए उन्होंने दादी की उदासी और परेशानी को महसूस किया तो दादी से पूछ लिया। तब दादी ने अपनी सहेली को सारा अहवाल कह सुनाया और कहा, मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ, कब मेरी आंख बंद हो जाए कोई खबर नहीं। अभी तो मैं जिंदा हूं और मेरी बच्ची के साथ ये हाल हो रहा है। मैं जानती हूं मेरे मरने की देर होगी, ये लोग मेरी मासूम बच्ची को दरबदर कर देंगे। इस बात ने मुझे डरा दिया है। कुछ समझ नहीं आती मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरी बच्ची का मुस्तकबिल महफूज रहे और ये दुनिया वालों के जुल्म का निशाना ना बने। अभी तो मेरी बच्ची बहुत मासूम है। सारी हकीकत जानकर दादी की सहेली ने चुटकियों में मसला हल कर दिया और मेरा रिश्ता अपने पोते के साथ कर दिया। रिश्ता मांगने की देर थी, दादी ने जिद पकड़ ली, तुम बस अपने पोते को बुलवाओ, मैं रोशनी का निकाह अपनी जिंदगी में करना चाहती हूँ। दादी की सहेली ने भी फौरन अपने पोते को बुलवा लिया। मैं उस अचानक उफ्ताद से बौखला कर रह गई थी। मैं अपनी दादी को रोकना चाहती थी, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी, मगर दादी ने मेरी एक नहीं सुनी। बस जैसे दादी की सहेली का पोता आया, मेरा उसके साथ निकाह कर दिया गया। वो शायद अपनी दादी का बहुत ही फर्माबरदार था, तभी उसने इतनी अचानक रिश्ते पर मसला खड़ा नहीं किया था। दादी को जैसे मेरे निकाह का इंतजार था। निकाह के कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से चली गई। मैं दादी की वफात पर चीख चीख कर रोई थी। मैं पागल हो रही थी। दादी की सहेली यानी अम्मा जान, जो शादी कुछ वक्त बाद करना चाहती थी, दादी की वफात के बाद रुखसती का भी फौरन से सोच लिया और 2 जोड़ों में मुझे अपने घर ले आई। मैं शदीद गम में डूबी थी और महसूस ही नहीं कर पाई कि मेरा शौहर बहुत ज्यादा संजीदा था। वो बिल्कुल चुप था, ऐसे जैसे उसके मुंह में जुबान भी ना हो। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी जुबान खुल गई। वो अपनी दादी से लड़ रहा था। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, इतनी अचानक मुझे बुलाकर आपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया, वो भी ऐसी लड़की के साथ जिसे मैं जानता तक नहीं। मुझे प्यार से पालने का इतना बड़ा सिला तो ना मांगती। अब अनजान घर में अगर आपको इनकार करता तो मुझे पता था आपने वहीं मुझसे नाराज हो जाना था और गैर लोगों के दरमियान आपको शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा। मगर आपने मेरा जरा एहसास नहीं किया, मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं अभी शादी के हक में नहीं था। मैं खुद को स्टेबल करना चाहता था। आपको सख्ती से मना किया था कि अभी मेरी शादी का नाम भी ना लेना, और रिश्ता करना तो दूर की बात, आपने मेरा निकाह करा दिया और जबरदस्ती इस मुसीबत को मेरे गले डाल के यहां भी ले आई। अब खुद संभालें, मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं इसका ख्याल रखूंगा या इसे कबूल करूंगा। ये बातें मेरे शौहर ने मेरे सामने की थी। मैं सर झुकाए वो सारी बातें सुन रही थी। मुझे रोना आ रहा था। मेरे शौहर के जाते ही अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, फिक्र मत करना, थोड़ा जज्बाती है मगर दिल का बहुत अच्छा है, अभी गुस्से में है। मैंने भी तो इतनी अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया, इसलिए गुस्सा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो तुम्हारे साथ बुरे तरीके से पेश आएगा। तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। अभी यहीं मेरे पास सो जाओ, शहरियार आएगा तो मैं उसके कमरे में भेज दूंगी। ये तो शुक्र है घर वाले घूमने गए हुए हैं, हमें आराम करने का मौका मिल गया। मुझे दिलासा देते हुए अम्मा जान आखिर में बड़बड़ाई। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर थी। वो मेरे साथ जो भी करते मैं किसी से गिला नहीं कर सकती थी। 2 दिन तक मैंने शहरियार को नहीं देखा। वो कब घर आता है और कब जाता है कुछ खबर नहीं थी। मैं अम्मा के पास ही रुकी हुई थी। 2 दिन बाद सब घर वाले आ गए। अम्मा जान ने मेरा तारुफ उनसे कराया तो सबके मुंह खुल गए थे।
उन लोगों को अंदाजा नहीं था अम्मा इतनी अचानक अपने पोते का निकाह कर लेंगी। सब ने सख्त अल्फाज में अम्मा जान को बातें सुना डाली। अम्मा जान भीगी आंखों से उनकी बातें सुनती और उन्हें सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तब ना जाने कहां से शहरयार आ गया और ऊंची आवाज में बोला, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है और मुझे अम्मा की पसंद पर कोई मसला नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरे मामले में कोई भी ना बोले और अम्मा जान को बातें सुनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसने जो भी बात करनी है मेरे साथ करे। चले अम्मा जान, कमरे में चलते हैं। चलो रोशनी। घर वालों को दो टोक बात करके शहरयार ने अम्मा जान को थामा और मुझे अपने साथ चलने का बोलकर अम्मा जान के कमरे की तरफ चला गया। फिर उसी रोज शहरयार मुझे अपने कमरे में ले आया। मैं पहली बार शहरयार का कमरा देख रही थी। कमरे में आते ही वो मुझसे बोला, अम्मा जान की खातिर तुम्हें अपने कमरे तक लाया हूं ताकि घर वाले अम्मा जान को बातें सुनाना बंद कर दें। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मैं चाहता हूं तुम मुझे परेशान मत करो। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया। मैं समझदार हो चुकी थी। अब मुझ में बचपना नहीं रहा था। फिर अम्मा जान की हिदायत के मुताबिक मैं शहरयार के सारे काम खुद करने लगी। मैं दिल से उसकी खिदमत करती। अम्मा जान का कहना था मेरी खिदमत करने से मेरा शौहर मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, मगर यह आसान नहीं था क्योंकि शहरयार की कजन जोनी मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। वो हर वक्त शहरयार के आसपास मंडलाती और मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मगर कभी अम्मा या शहरयार ने उसे नहीं रोका था। घर में रहते हुए मुझे मालूम हुआ कि शहरयार के वालिदैन भी बचपन में वफात पा चुके थे। शहरयार को अम्मा ने पाला था। बाकी सब ने शहरयार के साथ नौकरों वाला बर्ताव रखा। अम्मा जान भी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। उनके लिए बस ये गनीमत था कि शहरयार के चचाओं ने उसकी तालीम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। अब ऐसे में अम्मा जान की बहुएं शहरयार को बातें सुनाती और उसके साथ मुलाजमों वाला सलूक करती, तो अम्मा जान खामोश रहती। उनको डर था जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर वो शहरयार की तालीम रुकवा देंगे। शहरयार को भी उन्होंने ये बात बावर करा दी कि हर हाल में अपनी तालीम हासिल करनी है ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। छोटी सी उम्र में ही शहरयार अपना मकाम समझ चुका था, इसलिए दादी की बात को पल्लू से बांधा और अपनी तालीम बेहतर तरीके से हासिल की। अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर शहरयार ने ACCA किया था और जब से शहरयार ने डिग्री हासिल की थी, घर वालों का रवैया उसके साथ यकसर बदल गया था। अब शहरयार की जिंदगी मुख्तलिफ थी। अब वो यतीम व मस्कीन लावारिस बच्चा नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा, खूबरू और काबिल जवान था। तीनों चचाओं के घर में बेटियां मौजूद थीं और अपनी बेटियों को शहरयार के साथ ब्याहने के लिए तीनों चाचियां मोहब्बत जताती थीं। शहरयार की कजन्स भी खूब आगे पीछे घूमती, मगर एक कजन जोनी, वो तो बहुत ज्यादा तेज थी। उसने तो जैसे खुद को शहरयार की बीवी मान लिया था। शहरयार भी उसके साथ खुश था। मैं बहुत डर गई थी। शहरयार की सारी कजन्स बेतहाशा हसीन और तरहदार थी। उनके मुकाबले में मैं तो कुछ भी नहीं थी। वो सब शहरयार की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी, जबकि मैंने बामुश्किल FSC किया था। इसे आगे पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिला और मेरी शादी हो गई। अब यहाँ आकर एहसास कमतरी का शिकार होने लगी थी। इस खौफ की वजह से मैं शहरयार की बहुत खिदमत करती, उसके साथ बात करने की कोशिश करती, मगर शहरयार की संजीदगी बरकरार थी। वो ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता, सुबह सुबह घर से निकलता और आधी रात को ही घर लौटता था। उसकी क्या सरगर्मियां थीं और वो क्या करता फिरता था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। लेकिन मुझे अम्मा जान का आसरा था, जो मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे समझाती थी, तुम्हें शहरयार से बदजन नहीं होना, वही तुम्हारा असल है। अब भी वो अपनी नई नौकरी की वजह से मसरूफ रहता है,
मगर जल्दी तुम्हारे साथ अपना रवैया ठीक कर लेगा। मैं अम्मा जान की बातों पर ईमान ले आती, मगर आज सारी बातें धरी की धरी रह गई जब मैंने देखा शहरयार की कजन मेरे कमरे में मौजूद थे और शहरयार से कह रही थी, कब तक तुम इस बेकार लड़की को अपने गले का हार बनाकर रखोगे? फारिग करो इसे। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है। जितने तुम काबिल हो, तुम्हारे साथ कोई खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की जचती है, ना कि ये अनपढ़ गवार लड़की। बस तुम इसे चलता करो, मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। उसकी बात पर शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं, और बस कुछ दिन रह गए हैं, फिर मैं अपना फैसला सबको सुना दूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहरयार की बात सुनकर मेरे वजूद पर लर्जा तारी हो गया था। बामुश्किल खुद को सहारा देती मैं अम्मा के कमरे में आई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गई थी बहुत जल्द मैं इस घर से भी निकाले जाने वाली थी। फिर उसके बाद मेरा क्या होगा? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं बचा था। दादी भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मेरी ताई तो मुझे कभी भी घर घुसने नहीं देंगी। मैं तसव्वुर में दादी को याद करने लगी, उनसे शिकवा किया। ये कैसा मुस्तकबिल ढूंढा था आपने मेरा दादी, जहां से चली थी वहीं आ रुकी हो। मेरी इतनी खिदमतें, इतनी वफा मेरे काम नहीं आई, और एक बार फिर से मैं बेघर होने वाली हूं। इसे तो अच्छा था आप मुझे मार देती, मैं जिंदा ही ना रहती। उस रोज मैं बहुत रोई थी। अम्मा जान पूछ पूछ कर थक गईं कि आखिर मुझे क्या हुआ है, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। कुछ बताने का फायदा भी नहीं था। बहुत जल्द ही उनका पोता उन्हें हकीकत बताने वाला था। मेरे बोलने की जरूरत नहीं थी। और फिर वाकई शहरयार ने अपना फैसला सुना दिया। शहरयार के फैसले ने सबके होश उड़ाए थे। मैं भी बेयकीनी से शहरयार को देखे जा रही थी जब शहरयार ने कहा, मैं जैसी नौकरी चाहता था मुझे मिल गई है और अलग घर भी मिला है। मैं अम्मा और रोशनी को लेकर अपने घर जा रहा हूं। आप सब हमें मिलने आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। शहरयार की बात से सबके रंग उड़े थे, मगर शहरयार ने किसी की जानिब देखने की कोशिश नहीं की और मुझे अम्मा को लेकर नए घर आ गए। मैं अभी तक बेयकीन थी, मैं तो कुछ और समझी थी। और यही बात मैंने शहरयार से भी कही तो वो बोला, हाँ मैं शादी के लिए राजी नहीं था, मगर ये मतलब नहीं था कि मुझे कोई और लड़की पसंद थी। मुझे अम्मा की पसंद पर पूरा भरोसा है। मैं बस तब तक शादी के हक में नहीं था जब तक अपना अलग ठिकाना न बना लेता। मैं इन दोगले लोगों के दरमियान अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं करना चाहता था, मगर अम्मा ने जल्दी मचाई और मैं खामोश इसलिए रहा कि अगर अपनी शादी के हक में बोलता तो वो लोग अपनी औकात दिखाते, जो अम्मा से हरगिज बर्दाश्त ना होती। इसलिए उन्होंने जो समझा मैंने भी वही दिखाया। और मैं माजरत चाहता हूं, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम खुश रहेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी? शहरयार की बात सुनकर मैं एकदम से हल्की फुल्की हो गई और मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ रखा। दादी की बात सच थी। मुझे एक शहजादे ने अपनाया था, अब अपने घर की मलिका बना रहा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में आपको सब्र और हौसले का सबक मिलता है। किसी की भी जिंदगी में मुसलसल अंधेरा और जवाल नहीं रहता। बहार आती है और उरूज आता है, लेकिन आपने सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप मेरी कहानियां कहां कहां से सुनते हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर जहांजेब अंसारी का, जो कि ओमान से ताल्लुक रखते हैं, और मिस्टर राशिद अनवर का, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें।
इंस्टाग्राम लिंक यूट्यूब बायो में मौजूद है। और हाँ, कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि अपनी ज़िंदगी में कौन कैसे जंग लड़ रहा है। हमारी कहानियों से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।